ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पद्मं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं चैतन्येश्वरम्। ऑल राइट, सो 10th चैप्टर कर रहे हैं, 9th श्लोका। ये कल तो हमने नहीं करा था ना? कल हमने 10.8 करा था सारा। ये करा था, हाँ भाई, मुझे भी लग रहा है मैंने सेपरेटली करा होगा। ओके। मच्चित्ता मद्गता प्राणा, मच्चित्ता मद्गता प्राणा, बोधयन्ता परस्परं, बोधयन्ता परस्परं, कथयन्तश्च मां नित्यं, कथयन्तश्च मां नित्यं, तुष्यन्ति च रमन्ति च। तुष्यन्ति च रमन्ति च। कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन? I will read. हाँ जी। Translation. The thoughts of my pure devotee dwell in me. Their lives are fully devoted to my service, and they derive great satisfaction and bliss from always enlightening one another and conversing about me. हरे कृष्णा। तो यहाँ कृष्ण बता रहे हैं, कंटिन्यू करते हुए, चतुर्श्लोकी भगवत गीता का दूसरा श्लोक है। इसमें बता रहे हैं कि कैसे उनके शुद्ध भक्त के क्या कार्यकलाप होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो उनके शुद्ध भक्त जो है वो हमेशा भगवान को सेंटर बना के अपने कार्य करते हैं, और एक दूसरे को, जो डिवोटीज हैं, वो आपस में एक दूसरे से भगवान के बारे में डिस्कशन करके और बहुत ही आनंद प्राप्त करते हैं। तो हम पर्पट पढ़ेंगे फिर और डिस्कशन करेंगे। कौन पढ़ेगा पर्पट? फर्स्ट पैराग्राफ आप कंटिन्यू करो। फर्स्ट पैराग्राफ। Yes, purport. Pure devotees, whose characteristics are mentioned here, engage themselves fully in the transcendental loving service of the Lord. Their minds cannot be diverted from the lotus feet of Krishna. Their talks are solely on the transcendental subjects. The symptoms of the pure devotees are described in this verse specifically. Devotees of the Supreme Lord are 24 hours daily engaged in glorifying the qualities and pastimes of the Supreme Lord. Their hearts and souls are constantly submerged in Krishna, and they take pleasure in discussing him with other devotees. हरे कृष्ण। तो ये शुद्ध भक्त के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यहाँ पे, कि वो भगवान की सेवा में लगते हैं, अपने माइंड को डाइवर्ट नहीं होने देते भगवान से, भगवान की सेवा से, और जो 24 घंटे वो भगवान को ग्लोरीफाई करने में लगते हैं। ग्लोरीफाई करना मतलब भगवान की कीर्ति करना, कीर्तन करना, भगवान के बारे में बताना, भगवान के नाम लेना, और उनके हृदय जो है पूरी तरह से भगवान में समझ रहता है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। यू विल कंटिन्यू? Yes. In the preliminary stage of the devotional service, they relish a transcendental pleasure from the service itself, and in the mature stage, they are actually situated in love of God. Once situated in that transcendental position, they can relish the highest perfection which is exhibited by the Lord in his abode. Lord Chaitanya likens transcendental devotional service to the sowing of a seed in the heart of the living entity. There are innumerable living entities traveling throughout the different planets of the universe, and out of them, there are few who are fortunate enough to meet the pure devotee and get a chance to understand devotional service. This devotional service is just like a seed. If it is sown in the heart of a living entity, and if he goes on hearing and chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, that seed fructifies just as the seed of a tree fructifies with regular watering.
The spiritual plant of devotional service gradually grows and grows until it penetrates the covering of the material universe and enters into the Brahma Jyotir effulgence in the spiritual sky. In the spiritual sky, also that plant grows more and more until it reaches the highest planet, which is called Goloka Vrindavan, the supreme planet of Krishna. Ultimately, the plant takes a shelter under the lotus feet of Krishna and rests there. Gradually, as a plant grows fruits and flowers, the plant of devotional service also produces fruits, and watering processes in the form of chanting and hearing goes on. This plant of devotional service is fully described in Chaitanya Charitamrita Madhya Leela, chapter 19. It is explained there that when the complete plant takes shelter under the lotus feet of Supreme Lord, one becomes fully absorbed in love of the God. Then he cannot live even for a moment without being in contact with the Supreme Lord, just as a fish cannot live without water. In such a state, the devotee actually attains the transcendental qualities in contact with the Supreme Lord. Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू, वेरी नाइस। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि शुरू की स्टेज से मोस्ट एडवांस स्टेज कैसे चलती है। प्रिलिमिनरी स्टेज यहाँ पे दिया है ऑफ डिवोशनल सर्विस, दे रियलाइज द ट्रांसेंडेंटल प्लेजर फ्रॉम द सर्विस इटसेल्फ एंड इन द मैच्योर स्टेट दे एक्चुअली सिचुएटेड इन लव ऑफ गॉड। तो शुरू की स्टेजेस में क्या होता है कि प्लेजर आना पूरी तरीके से शुरू नहीं होता और सेवा में ही प्लेजर होता है, लेकिन धीरे 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 जो है वो भगवान के प्रेम को एक्सपीरियंस कर पाते हैं और उनका जो भगवान से कनेक्शन है बहुत स्ट्रांग हो जाता है। फिर आगे बता रहे हैं कि जब ऐसे स्थित होते हैं, जब ऐसे स्टडी होते हैं अपनी सेवा में, तो धीरे धीरे वो हाईएस्ट परफेक्शन को भी रियलाइज कर सकते हैं, विच इज एग्जिबिटेड बाय द लॉर्ड इन हिज अबोर्ड, और भगवान के धाम में जा सकते हैं। फिर आगे बता रहे हैं लॉर्ड चैतन्य लाइकन्स ट्रांसेंडेंटल डिवोशनल सर्विस टू द सोइंग ऑफ द सीड इन द हार्ट ऑफ लिविंग एंटिटी। तो इसका कंपैरिजन किया गया है किससे, जो बीज बोते हैं हम, तो जब बीज बोते हैं तो एक पौधा निकलता है, उसी तरीके से भक्ति का भी जो है बीज बोते हैं तो उससे एक्चुअली भक्ति जो है सबके हृदय में पूर्ण ज्ञान है, पूर्ण भक्ति है, लेकिन अभी उसको अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं मिला। कई बार आप देखोगे बीज जो है वो बहुत टाइम तक ऐसे ही रहता है, उसमें से पौधा नहीं निकलता, लेकिन सही एटमॉस्फेयर जब मिले, सही मॉइस्चर हो, सही टेम्परेचर हो, सही एनवायरनमेंट हो, तो उसमें वो फिर बीज से धीरे धीरे फ्रक्टिफिकेशन होती है और पौधा बाहर आने शुरू हो जाता है। उसी तरीके से हमारा भी ये कितने जन्मों से हम एक्चुअली भटक रहे हैं इधर से उधर। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, के ब्रह्मांड में इतने सारे जीव भटक रहे हैं इधर से उधर, लेकिन कोई बहुत रेयर ही ऐसा होता है जिसको गुरु और कृष्ण की कृपा से ये भक्ति लता का ये बीज मिलता। तो मतलब भक्ति जो है वो एक डोरमेंट स्टेज में हमारे हार्ट हृदय में, जैसे डोरमेंट सीड होता है, और वो बीज को सही एनवायरनमेंट कैसे मिलता है, जब हम चैंटिंग करते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम साधुओं का एसोसिएशन लें जो डिवोटीज है, जो एक्सपीरियंस हैं, और उनके एसोसिएशन में हम भजन करें, ये चैंटिंग करें, और इससे क्या होगा, धीरे धीरे वो फ्रक्टिफाई होने लग जाएगा पौधा, और फिर वो ग्रो होता रहता है। जैसे जैसे हम ये करते रहते हैं, शास्त्र को पढ़ते रहते हैं, समझते रहते हैं, भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, तो आगे आगे चलते 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 वो ग्रो होता रहता है। और ग्रो होने में बहुत सारी ऐसी प्रलोभन आते हैं और कई ऐसी चीजें आती हैं जो कहती हैं कि ये कर लो वो कर लो और आप भक्ति कितनी जरूरी नहीं है। लेकिन व्यक्ति जो स्थित रहता है वो आगे बढ़ता जाता है, आगे बढ़ता जाता है, भक्ति करता रहता है, फिर आगे चल के उसको लिबरेशन भी मिल जाती है। लिबरेशन जो भगवान की भक्ति करने से मोक्ष
मिल जाता है। तो कई लोग मोक्ष के बाद कहते हैं चलो अच्छा है, अब मोक्ष मिल गया, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन भक्त जो होता है वो उसमें भी भक्ति करता रहता है, मोक्ष की स्टेज में भी, और आगे बढ़ता जाता है, और आगे बढ़ता जाता है, और फिर हाईएस्ट लेवल पे आ जाता है जब मोक्ष की भी अलग अलग स्टेजेस है एक्चुअली। एक तो बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज है जिसमें आप मटेरियल वर्ल्ड से तो बाहर आ गए लेकिन अभी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं गए, ब्रह्म ज्योति में हो आप। तो जन्म मृत्यु चौरा व्याधि से तो बाहर आए लेकिन अभी भगवान के धाम नहीं पहुंचे। तो अगर उसी में कोई सेटिस्फाई हो जाए तो वो फिर वो बीच में ही रह जाता है, ऊपर नीचे ही कर दे, वो वापस भी आ सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति स्टेडीली करता रहे भगवान, तो वो इन प्रलोभन से भी विचलित नहीं होता, डिविएट नहीं होता, और आगे बढ़ता रहेगा। और फिर फाइनली क्या होगा, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चला जाएगा, और उसमें भी हाईएस्ट लेवल पे चला जाएगा, गोलोक वृंदावन। और अल्टीमेटली भगवान की शरण कृष्णा, भगवान अलग अलग रूपों में स्पिरिचुअल वर्ल्ड, तो कृष्णा की शरण में चला जाएगा। वो हाईएस्ट लेवल पे एक्चुअली हाईएस्ट लेवल की रिलेशनशिप उनके साथ हो सकता है। और धीरे 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 प्लांट जो है वो ग्रो करता है, फ्रूट्स आते हैं इसमें, फ्लावर्स आते हैं बेसिकली, और ज्यादा भगवान की सेवा करने का मौका मिलता है। और रेलिश जो पूर्ण रूप से आनंद का है, वो सेटिस्फैक्शन और ब्लिस यहाँ पे एक्सपीरियंस होता है। तो कैसे हो रहा है, एसोसिएशन, हेयरिंग, चैंटिंग, ये चलती रहनी चाहिए। और शास्त्रों में एक्सप्लेन किया हुआ है, चैतन्य चरितामृत में भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, बता रहे हैं प्रभुपाद। तो जब कंप्लीट शेल्टर हो जाता है भगवान का, तो भगवान के प्रेम में पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है, और फिर भगवान के बिना एक क्षण भी नहीं बिता सकते। युगायतम निमेषेन चक्षा प्राप्त शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेन में। तो भगवान के से जुदा होके एक मोमेंट भी उनको ऐसा लगता है जैसे कई सारे युग बीत गए हैं, कई सारे कई 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 सेंचुरीज, डेकेड से भी ज्यादा। तो ये है बहुत ही एडवांस लेवल का। जैसे मछली है वो पानी के बाहर नहीं रह पाती, उसी तरह से ऐसे भक्त जो है भगवान की सेवा और भगवान के साथ क्लोज कांटेक्ट के बिना नहीं रह पाते। और ऐसे जो भक्त होते हैं उनकी जो कार्य होते हैं वो भी दिव्य होते हैं, उनकी भी पूरी वो दिव्य ट्रांसजेंडर प्लेटफॉर्म में। लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे, कौन वॉलंटियर करेगा लास्ट पैराग्राफ पढ़ने के लिए? हरे कृष्ण प्रभु I जी। can read. हाँ पढ़िए, अंकिता माता जी बोलो। The Srimad Bhagavatam is also full of such narrations about the relationship between the Supreme Lord and his devotees. Therefore, the Srimad Bhagavatam is very dear to the devotees, as stated in the Bhagavatam itself, 12.13.18. Srimad Bhagavatam Puranam Amalam Yad Vaishnavanam Priyam. In this narration, there is nothing about material activities, economic development, sense gratification, or liberation. Srimad Bhagavatam is the only narration in which the transcendental nature of the Supreme Lord and his devotees is fully described. Thus, the realized souls in Krishna consciousness take continual pleasure in hearing such transcendental literatures, just as the young boy and girl take pleasure in association. Hare Krishna. कृष्णा। तो जैसे यहाँ पे लास्ट लाइन में प्रभुपाद बोल रहे हैं, ये नेचुरल फिनोमिनन होता है कि एक आप देखो कि यंग बॉय है अगर, तो वो नेचुरली अट्रैक्टेड होगा यंग गर्ल पे, एंड वाइस वर्सा। तो ये जो टीनेज या अर्ली एडल्ट एज है उसमें वो नेचुरल है। उसी तरीके से भगवान के बारे में सुनना जो एडवांस भक्त है उनके लिए नेचुरल है। जो यहाँ पे ऑपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्शन दी गई है या एसोसिएशन बताने की बात की गई है, ये कुछ भी नहीं है एज कंपेयर टू जो अट्रैक्शन होती है भगवान के तरफ, भगवान के भक्तों में। इसलिए हम देखते हैं कई कई ब्रह्मचारी सन्यासी वो कई कई दशकों तक पूरे टाइम भगवान की सेवा करते रहते हैं, भगवान के बारे में सुनना बताना, इस चीज में उनको इतना आनंद मिलता है कि वो और कोई चीज के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो ये बड़ा हाई लेवल का क्या कहते हैं रिलेशनशिप होता है जो भगवान के भक्त और भगवान के बीच में होता है। तो ब्यूटी क्या है कि ये सब लोगों को भगवान देने के लिए तैयार है।
सब लोगों जो है वो भगवान के संपर्क में आके ये हाईएस्ट लेवल तक जा सकते हैं। हमें देखना है कि हम कितने सीरियस हैं इसके लिए। जितने सीरियस हम होंगे और प्रयास करेंगे, उतना भगवान जो है हमारे को ऊपर कृपा करके, भगवान तो वेट कर रहे हैं हमें कृपा देने के लिए, तो उतना हमारे को भगवान आगे टेस्ट देंगे। तो यहाँ पे लिखा है श्रीमद् भागवतम इज फुल ऑफ, और श्रीमद् भागवतम जो है उसमें कई सारे ऐसे क्या कहते हैं इंस्टेंसेस हैं, हिस्टोरिकल इंस्टेंसेस हैं, जहां पे शुद्ध भक्त वो आपस में आते हैं एक दूसरे के साथ और भगवान के बारे में चर्चा करते हैं। तो भरी हुई है जो शास्त्र है वो इस तरीके के एग्जाम्पल्स हैं। और भगवान और भक्तों का भी बहुत यूनिक और पावरफुल रिलेशनशिप है। यहाँ पे बता रहे प्रभुपाद, Srimad Bhagavatam is also full of such narrations about the relationship between Supreme Lord and devotees. Therefore, Srimad Bhagavatam is very dear to the devotees. इसीलिए क्योंकि भगवान जो है उनके साथ ऐसा रिलेशनशिप है, इसलिए भागवतम जो है वो बहुत डियर है, बहुत पसंद है लोगों को, और उसमें कुछ भी मल नहीं है। मतलब मल मीन्स खराब चीज, अमलम मीन्स बिल्कुल भी खराब नहीं, जो पवित्र है पूरी, वैसी है भगवान भागवतम। और मल मतलब क्या है, गंदा मतलब क्या है, गंदा मतलब ये सब मटेरियल चीजें जो हैं वो ऑब्स्टेकल हो जाती हैं स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए। तो मटेरियल एक्टिविटीज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सेंस ग्रेटिफिकेशन, लिबरेशन, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये सब चीजों के चक्कर में ही अगर हम फंसे रहेंगे तो हम जन्म मृत्यु से तो बाहर निकलने की दूर की बात है, लेकिन हमें अगली योनि इंसान की भी मिलेगी ये भी कोई गारंटी नहीं। क्योंकि जनरली क्या होता है धर्म के मतलब होता है कि वो मटेरियल एक्टिविटीज में लगते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट रहते हैं और सेंस ग्रेटिफिकेशन, यही 3 तक रहता है, कोई लिबरेशन तक तो जाते भी नहीं है। तो इसका मतलब क्योंकि वो लिबरेशन तक नहीं जाते हैं इसलिए उनका एडवांसमेंट बहुत कम हो जाता है। और जो रियलाइज सोल्स हैं, रियलाइज मतलब कि जो शुद्ध भक्त हैं, जो मुक्त पुरुष हैं, टेक कंटिन्यूअल प्लेजर इन, वो क्या करते हैं, वो भगवान के बारे में सुनने और बोलने में बहुत आनंद उठाते हैं। ओके, तो ये श्लोक फिर से पढ़ेंगे यहाँ पे, ट्रांसलेशन। The thoughts of my pure devotees dwell in me. Their lives are fully devoted to my service, and they derive great satisfaction and bliss from always enlightening one another and conversing about me. तो ये श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी भी जो संस्कृत है वो अच्छे से कोशिश करिए आप लोग मेमोराइज करने की, जैसे हमने वो पिछले वाले की थी। तो ये एक बारी मैं बोलूंगा, आप लोग प्लीज रिपीट कीजिए। मच्चित्ता मद्गता प्राणा, बोधयन्ता परस्परम, बोधयन्ता अपरस्परं कथयन्तश्च मां नित्यम्, कथयन्तश्च मां नित्यं रमन्ति च। तुष्यन्ति रमन्ति च। ओके ग्रेट। तो आज का हम कॉन्फ्रेंस कॉल यहीं स्टॉप करते हैं। हमने 9th चैप्टर सॉरी 10th चैप्टर के 9 श्लोक तक कर लिया आज, और 2 श्लोक चतुर्श्लोकी भगवत गीता चतुर्श्लोकी भगवत गीता के हो गए हैं। अब हम कल करेंगे 10th श्लोक, और हम इनके रिसाइटेशन भी करेंगे श्लोकों के। ऑल राइट, किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट है? कोई कुछ शेयर करना चाहेगा इस पर्टिकुलर श्लोका में से? नताशा माता जी, वांट टू शेयर समथिंग 10.9 में से? नो प्रभु जी, मैंने बहुत लेट ज्वाइन किया था, तो बट आई डोंट हैव एनीथिंग टू शेयर। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, तो आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। ग्रंथराज भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जय।